Last time we started volume and surface area of cone. Okay, so if you want to find the volume of the coin, so what you will do, you need to use this formula, 1 divided by 3 pi r square h. Okay, h will be the, not the slant height, that will be the simple height, this height. Acha, if you want to find the surface area, so what you will do, you will need to find this surface area. Okay, this whole curved surface area. So curved surface area will be equal to pi rl, sorry, curved surface area will be equal to pi rl plus pi r square. Okay, plus pi r square. Pi r square is the base area, and that is also the surface. Okay, this is the pi r square and the curved surface is the pi rl. तो ये आपका total surface area हो जाएगा. Okay, yes, this is pi rl and the base one is the pi r square. ये formulas हमने last time discuss किए थे. तो in today class we will start the exercise. Okay, so let's start the exercise. अच्छा, ये एक्सरसाइज हमने किया था कि नहीं? कौन सी? ये वाले 12B. कुछ किए थे। अच्छा, कुछ किए थे तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे. इंटरमीडिएट लेवल आज करना है. नहीं, 11 तक किए, 11 10 तक किए थे। 11 12 वगैरह करना। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था. क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? दिस वन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं, हम. 9 किया था। A conical funnel of diameter 23.2, ये वाला किया था। यस, ये किया था. क्वेश्चन नंबर 10. A conical block of silver has a height of 16 centimeter and a base radius of 12 centimeter. The silver is melted to form the coins 1 by 6 centimeter thick and 1 divided by 1 into 1 divided by 2 centimeter in diameter. Find the number of coins that can be made. Okay. A So, conical block of hmm? so what do you think? क्या करना होगा यहाँ पे? A conical block of silver and has a height of 16 centimeters and a base radius of 12 centimeters. The silver is melted to form coins 1 divided by 6 centimeters thick and 1.5 centimeters in diameter. 1.5. 1 divided by 6 and 1.5 centimeters in diameter. Find the number of coins that can be made. Height or radius 12. मतलब 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, we need to find. अच्छा, We need to make. 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का बनता है। Yeah, this तो is the फिर coin. और 1 डिवाइड बाय 6 Thickness. 1 डिवाइड बाय 0.16 1 डिवाइड बाय 6 is 0.16 infinite। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? आपने एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है या टोटल सरफेस एरिया की तरफ आपने जाना है? करना the number of coins that can be made। सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है. A conical block of silver has a
height itna and base radius itna. So this is the conical block. This is not the empty conical. तो फिर हमने क्या करना है? कॉनिकल ब्लॉक मीन्स कि हमने इस तरह करना है कि ये फिल हैं, ये टोटल जिस तरह इसमें पानी डाल दो तो फिल अप हो जाते, तो ये आपका सिल्वर से बना हुआ है टोटली। ओके, जिस तरह वो आपका वो नहीं होता कौन जो आइसक्रीम होते हैं उसी तरह के हैं ये ब्लॉक हैं। ओके, नॉट दी इनटू। तो इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दैट्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 इनटू pi r square h. So pi is 3.14, r is 12 centimeter, so pi r square h is 16. So ये आपका हो जाएगा, इसको 1 डिवाइड बाई 3.14 कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं। 3.14 इंटू 12 स्क्वेयर टाइम 16 डिवाइड बाई 3, so that will be equal to 2411.52. 3.14 into 12 into 16 divided by 3 is 200.96. अच्छा, अब मेरे पास टोटल वॉल्यूम ये आ गया। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, योर टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2411.52 is equal to the number of coins, let's say that is represented by alphabet n, times the volume of one coin. So now we will need to find the volume of one coin. So let's find that. So that will be equal to the diameter is 1.5, so the radius will be equal to 7.5. No, 0.75. 0.75 centimeter will be the radius. Okay, so the volume of this coin will be equal to pi r square h. यहाँ पे 1/3 आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज दिस यहाँ पे आपका एपेक्स नहीं बन रहा है। दिस इज द कॉइन, सिंपल कॉइन है, जिस तरह आपका सिलेंडर होता है ना उसी तरह ये कॉइन है आपका। ओके, तो यहाँ पे आपका एपेक्स नहीं बन रहा। जहाँ पे एपेक्स बनेगा वहाँ पे आपने 1 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज योर एपेक्स। ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। सो दिस विल बी 2411.52 आ जाएगा। दैट्स विल बी इक्वल टू n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इज 3.14, आर वैल्यू इज 0.75, एच वैल्यू इज 1 डिवाइड बाई 6। सो इसको सॉल्व कर लो। सो यू विल गेट 3.14 times 0.75 square times 1 divided by 6. So you will get 0.294. So 2411. 3.14 into 75 square divided by 6. Yes, I did that. So 2411.52 इसका आंसर क्या है? 8192 इसका आंसर आएगा। 2943. अच्छा, डिवाइड बाय 6। अच्छा, इसके साथ आपने कोई सेंटीमीटर नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज द नंबर और नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता। 2943 है। या 0.294375। इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखना, कॉइंस लिखना है, क्योंकि दिस इज द नंबर, दिस सेंटीमीटर क्यूब यूनिट विल कैंसल आउट बाय दिस यूनिट। सो ये चेक कर लो 28192 आंसर आ रहा है कि नहीं। Twelve B 10 8192. Yes, 8192. So that is the correct answer.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is an open cone. Open cone. Okay, this is not the solid cone. Okay, this is the open cone. Has a circular base of radius etna and a slant height of 20 centimeter. Draw the net of the cone and label the its dimension. तो आपने लेबल करना है डायमेंशन को. क्या करना है? लाइक दिस इज द कॉन. Okay, slant height is 20 centimeter. Okay, this will be the height. Okay, and this will be the radius. तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा. और आपका ये हाइट जो Draw है, the net of the cone. ये हाइट जो है ये आपका क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू 20 स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट. सो 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 माइनस 100 तो 300 स्क्वेयर रूट आपका ये हाइट आ जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12. The semicircle shown is folded to form a right circular cone so that the arc PQ become the circumference of the base. The given that the diameter Given of that the diameter. circle PQ is 10 centimeter, find the diameter of the base, the curved surface area of the cone. PQ is 10 centimeters. Find the diameter of the curved surface area of the cone. ये नीचे कौन तो नहीं है. ये कौन नहीं है, ये आपका राइट सर्कुलर कौन है. राइट सर्कुलर कौन मीन्स कि ये आपका कुछ इस तरह का कौन को आप स्प्लिट कर लो तो ये आपका कुछ इस तरह का कौन बनेगा. लाइक दिस. अच्छा. हाफ कौन बनेगा. वॉल्यूम को हाफ कर लो. तो cone is half of semicircle. यस. The diameter is 5. और फिर दूसरा है और फिर हमारी रेडियस 2.5 है. सर यस. हमारी रेडियस 2.5. अच्छा, रेडियस आपका क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा. क्योंकि हमने 10 को हाफ किया और डायमीटर निकालने के लिए डायमीटर 5 आ गया, उसको हाफ किया, रेडियस 2.5. नहीं है, आपने क्यों इसको. दिस इज द डायमीटर एंड दिस इज द रेडियस. मगर ये जो सेमी सर्कल का है, ये सेमी सर्कल का, तो उन्होंने क्या कहा? द डायमीटर ऑफ द बेस. कोन की बेस ना. The semicircle shown is folded to form a right circular cone. So that PQ becomes the circumference, PQ is circumference of the base. Given that the diameter of the semicircle PQ is 10 centimeters, given that the diameter of the centimeter is, just find the diameter of the base, the curved surface area of the cone. So folded to form. अच्छा, अभी आपका जो आर्क है वो कितना आ रहा है? अभी आपका 2πr डिवाइड बाई 2 आ रहा है ना. हमारा
आपका जो ये आर्क मगर है, हमारी आर्क 10 नहीं है। नहीं नहीं, दिस इज द आर्क, दिस इज नॉट इक्वल टू 10। ये आपका हो जाएगा 2 पाई r हाँ। डिवाइड बाई 2। ओके, सो दैट्स इक्वल टू पाई r, दिस इज द आर्क। ओके, अच्छा रेडियस आपका कितना है? ये नहीं होता आर्क लेंथ इक्वल्स टू, हाँ इधर एंगल नहीं दिया हुआ। रेडियस 5। Radius is 5, diameter of the cone is 10, yeah, radius 5, so 5 pi, that's equal to, wait, तो diameter आपका हो जाएगा, circumference आपका पाई d बन रहा है। ओके, और सरकमफ्रेंस भी 10 है, डायमीटर भी 10 है। कहाँ पे गिवन है कि circumference आपका 10 है? PQ becomes the circle, so that the arc PQ becomes the circumference. ओके, so that the, हमारी आर्क 2 पाई r है। yes, आपका आर्क जो है वो 2 पाई r डिवाइड बाई 2 हमारी नहीं होगा? आर्क 31.4 बिकॉज डायमीटर है ना, तो डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे? अच्छा, इसका इट मीन्स के आपका जो ये इन्होंने जो बात की है कि so that the arc PQ become the circumference of the base, okay, is folded, the semicircle shown is folded to form a right circular cone so that the arc PQ become the circumference. So let's say PQ is equal to 10 centimeter. This is 10 centimeter. So if you fold this like this, so this will become the circumference. So this will be P, इसको घुमा लो इस तरह, तो this will be Q. So this circumference will be equal to 10 centimeter. So it means this. So it means that your circumference, which is equal to 2 pi r, that is equal to 10. Got it? जो आपका ये कैसे? नहीं, ये आपका कितना उन्होंने क्या किया कि the diameter of the semicircle PQ, the diameter of the semicircle PQ is 10 centimeter. So PQ is 10 centimeter. ऊपर उन्होंने कहा कि Find the diameter. the arc PQ become the circumference of the Arc. base. तो इस सेमी सर्कल हाँ, को तो जो मैंने ओरिजिनली कहा था वो सही था। जी जी, डायमीटर और सरकमफ्रेंस इक्वल है। या इक्वल है एग्जैक्टली, क्योंकि इसको आप इस तरह फोल्ड कर लो, इसको इस साइड पे ले आओ, तो ये इस तरह सर्कल बन जाएगा। पी क्यों अभी स्ट्रेट लाइन है, इससे सर्कल बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा। सो इट मीन्स के सर्कमफ्रेंस हम किसको कहते हैं? द एक्सटर्नल डिस्टेंस को कहते हैं। इस डिस्टेंस को कहते हैं कि ये कितना है। सो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना था पहले? ये आपका 10 सेंटीमीटर था। उसको आपने इस तरह फोल्ड किए इस तरह, तो ये आपका इस तरह सर्कल बन गया है। ओके, पहले आपका स्ट्रेट रोप था। तो ये आपका इट मीन्स के सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू 10। तो it means कि pi d is equal to 10. So it means कि your d will be equal to 10 divided by pi. So this will be the final answer. 10 divided by pi कर लो, so you will get 3.18. अच्छा, next part क्या है? The curved surface area of the cone. अच्छा, तो curved surface area of the cone means के we will need to find the surface area of the semicircle. आपने पाई से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपका circumference 2r is equal to d. So instead of 2 pi r, I will write pi d. So d will be equal to 10 divided by 2.
अच्छा मगर इसी हाउ डू 5d इक्वल टू 10 जब 10 वैसे है? जी उन्हें लिखा हुआ है कि 10 वैसे डायमीटर सेमी सर्कल का, मतलब d इक्वल्स टू 10। इन्होंने कहा कि गिवन दैट द डायमीटर ऑफ दिस, यहाँ पे आपको डायमीटर भी गिवन है, ओके 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन है, ओके। और उन्होंने कहा कि ऊपर उन्होंने एक दूसरा इंफॉर्मेशन भी दिया कि द सेमी सर्कल इज फोल्डेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन सो दैट द आर्क पी क्यू बिकम द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द वायर, सो दैट द आर्क पी क्यू बिकम द सर्कम्फ्रेंस, ये आपको इस तरह सर्कम्फ्रेंस बन जाएगा। गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि सो दैट द आर्क पी क्यू बिकम द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस। सही है, तो इसी तरह सॉल्व कर लो, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर। अच्छा सेकंड पार्ट को देख लो। इसका आंसर क्या है? सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का हमारा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो होता है पाई आर एल, करेक्ट। यस। और हमें अभी पता लगा है कि हमारा क्या कहते हैं, हमारा डायमीटर कोन का सेमी सर्कल का नहीं, कोन का 3.18 है, तो इसका रेडियस डिवाइड बाय 2 नहीं होगा? करेक्ट या इनकरेक्ट? वेट, डायमीटर आपका 3.18 निकलेगा। थ्री पॉइंट वन एट यस। अच्छा एंड पे आंसर चेक कर लो, 3.18 आ रहा है कि नहीं? एंड में आंसर है 5 तो नहीं है? 12b, क्वेश्चन 12 1 5 5 या 5 है ना? डिवाइड बाय 2 ही था। यस, डिवाइड बाय 2 ही था। वेट, द डायमीटर ऑफ द कोन क्या हो जाएगा? सर्कल टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन सो दैट द so this is the cone and the diameter of the cone, now that will become 5. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। नहीं, पार्ट वन क्यों आप 10 से इसको डिवाइड कर रहे हो? हाँ
10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 5। और एक और भी रीजन, जो हमने पहले किया था, हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स कौन? हाफ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, कौन? कहाँ पे किया था ये हमने? जी ये हमने कहाँ पे पढ़ा था कि हाफ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कौन? नहीं, आपने अभी तो बताया कि जो हमारा क्वेश्चन फिर से पढ़ ले तो ये नहीं इस कहा कि सेमी सर्कल मगर इस इंस्टेंस में है। The semicircle shown is folded to form a right circular cone so that the arc PQ becomes the circumference of the base. इस सेमीसर्कल को फोल्ड किया उन्होंने कि ताकि कौन बन जाए ऐसे। इस तरह फोल्ड किए हैं। टू फॉर राइट, मगर ये कौन तो नहीं बनाया आपने, ट्रायंगल बनाया। कौन की बेस सर्कुलर नहीं होती? सर्कुलर होती हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। मुझे पे कर्व पार्ट किधर है? यही तो कंफ्यूजन है कि इसको आपने किस तरह फोल्ड करना है, सो दैट दी folded to form a right circular cone so that the arc PQ become the right circular cone। तो आपका ये this is the right circular cone, this is known as right circular cone। एक कोन आपका इस तरह भी होता है ना, कुछ कोन which is not the right circular cone, कुछ कोन आपके इस तरह होते हैं। so this is not the right circular cone but this is the right circular cone। राइट सर्कुलर कौन होती है जिसमें राइट एंगल होता है? या जिसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा हो और बेस और रेडियस के, ये भी कौन है आपका, बट यहाँ पे देख लो तो दिस इज़ द हाइट और एंगल बिटवीन हाइट एंड बेस वो 90 डिग्री नहीं बन रहा। ओके, दैट इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये भी कौन है आपका, बट दिस इज़ नॉट द राइट सर्कुलर कौन, दिस इज़ द राइट सर्कुलर कौन। तो यहाँ पे वेट थोड़ा और सोचने दो। सो दिस विल बिकम so that the original base जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ओके, बेस इस वो आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अच्छा वेट, ये आर्क हम फाइंड कर लेते हैं सो दैट द आर्क पी क्यों बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो ये आर्क फाइंड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, टू आर्क आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस विच इज़ 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दिस इज द सेमी सर्कल। तो आर्क लेंथ आपका हो जाएगा पाई आर, तो आर कितना है वो 5 है, तो 5 पाई हो जाएगा। सो दैट द आर्क पी क्यों बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। सो नाउ द सर्कमफ्रेंस इज 5 पाई। So circumference is pi d which is equal to 5 pi. So this pi will cancel out by this pi, so your d will be equal to 5। इस तरह होगा। समझ आ गया आपको कि नहीं? नहीं, इतना इजी क्वेश्चन था, वैसे ही कंफ्यूज हो रहे थे। इतना ये तो गलत कैसे हुआ था? नहीं, वहाँ पे हमने इसको इग्नोर कर लिया था, तो इसी वजह से हम गलत हो रहे थे। वहाँ पे मैं डायमीटर पी क्यों ले रहा था, बट दिस इज आर्क पी क्यों। So arc equals to 2 pi r divided by 2, arc equals 5, circumference equals to 5, pi d equals to 5, pi d equals to 5। पहले ऐसे ही था कि diameter equals arc equals to 2 pi r divided by 2, तो 5 कैसे बन गया? तो 5 यहाँ पे डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपने एक एक वर्ड्स को काफ़ी केयरफुली रीड करना है।
क्योंकि यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर रहे थे, आर्क पी क्यू को हम इग्नोर कर रहे थे, दिस इज आर्क पी क्यू। तो इसी वजह से पहले हमसे थोड़ी एक सिली मिस्टेक हुआ था। सो बट ये इस तरह हाईलाइट कर लिया करो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको इस तरह की मिस्टेक आपसे ना हो। अच्छा, समझ आ गया आपको कि नहीं? ओके। मगर डिवाइड बाय 2 क्यों किया? वो इसलिए कि दिस इज द सेमी सर्कल। हमने इसका यूज भी तो नहीं किया डिवाइड बाय 2 का। कौन से डिवाइड बाय 2 यहाँ पे किए हैं? ये आपको कंफ्यूजन हो रखी है, मैंने क्यों किए हैं डिवाइड बाय 2? हमने यूज तो नहीं किया। नहीं, एक्चुअली आपका टोटल सर्कमफ्रेंस कितना बन रहा है? आपने लिखा है, दैट इज 2 पाई आर। हमने डिवाइड बाय 2 किया किसके सेमी सर्कल। यस, समझ आ गई, वरना तो 10 पाई होता। अगर टोटल सर्कल होता तो 10 पाई होता फिर, लेकिन सेमी सर्कल है, सो दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 2 किया। उन्होंने फिर आगे कहा कि आपका जो आर पी क्यू है ना, बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सो दैट्स व्हाई बेस्ड ऑन दैट few lines I wrote this equation. Circumference will be equal to 5 pi because this is PQ arc. Got it? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए बैटरी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इसको एक ही उसमें लेते हैं। लेकिन लेट से यू हैव ए बैटरी, ओके, और बैटरी जो है वो आपके पास लेड एसिड बैटरी है। वैसे बैटरी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका लेड एसिड बैटरी होता है और दूसरा जो होता है वो आपका ड्राई बैटरी होता है। तो ड्राई बैटरी मीन्स कि उसमें कोई लिक्विड नहीं होगा, ओके। और जो वैसे बेस्ट जो होता है वो ड्राई बैटरी होता है, और वो डीप साइकिल भी होता है। डीप साइकिल मीन्स कि अगर आप उसको 0% डिस्चार्ज कर लो अप टू 0%, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उस पर, उस लाइक आपका बैटरी के लाइफ टाइम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। या अगर आप उसको 100% चार्ज भी कर लो तो बैटरी के लाइफ टाइम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो लीड एसिड बैटरी हैं तो इसमें लिक्विड यूज़ होता है जो H2SO4 होता है। नॉर्मली हम कार्स में भी लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। उसको अगर आप 0% तक डिस्चार्ज कर लो तो वो लाइक उसको फिर चार्ज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा, वो काम छोड़ देगा। या अगर उसको आप 100% तक चार्ज भी कर लो तो उसके लाइफ टाइम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और वैसे नॉर्मली अगर आप इसको यूज़ लाइक लाइफ टाइम जो होगा वो डीप ड्राई बैटरी का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी लीड एसिड बैटरी। और लेकिन फिर ड्राई बैटरी का लाइफ टाइम खत्म क्यों होता है? वो तो फिर खत्म ही नहीं होना चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली उसमें इस तरह होता है कि लाइक लाइफ टाइम उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर इसका 5 ईयर होता है तो उसका 10 to 12 ईयर। लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, ठीक सर, ठीक। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर घरों में आपने सोलर नहीं सर, ड्राई बैटरी कॉस्टली होती है। या ड्राई बैटरी कॉस्टली होती है। अगर आपने घर में सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन किए हैं तो ज़्यादातर घरों में वो सोलर पैनल के लिए वो यही लीड एसिड बैटरी वो कर लेते हैं। ड्राई बैटरी का कॉस्ट का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि प्लस पॉइंट ओके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो लीड एसिड बैटरी में क्या होता है, 2 प्लेट्स होते हैं, ओके, इस तरह के 2 प्लेट्स होते हैं। और यहाँ पे ये लेट से आपका पॉजिटिव है सही, और ये आपका नेगेटिव है सही। तो करंट इसमें किस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह आएगा, दिस इज़ द रेजिस्टर, और करंट आपका विल मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे इस प्लेट, ये जो प्लेट होगा इसमें एक आपका लेड होता है, आई थिंक वो लेड ऑक्साइड होता है, दूसरा प्लेट मैं भूल गया हूँ उसको, लेकिन लिक्विड इसका H2SO4 होता है यहाँ पे सही है। तो ये लिक्विड जिस तरह वो शेप नहीं होता लाइक आप
उसमें चढ़े तो वो दूसरे कॉर्नर तक आपको पहुंचा देते। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए भी H2SO4 एज ए शिप काम करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसको लीव कर लेते हैं इस प्लेट को, ओके, लिक्विड में आ जाते हैं इस तरह, और इस तरह लिक्विड में आके फिर यहाँ पे हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो करते हैं अक्रॉस दिस, और यहाँ पे एनर्जी को डिसिपेट कर लेते हैं, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ तक आता है। सही है, लाइक यहाँ से एनर्जी को ले जाते हैं इस तरह और वहाँ पे डिसिपेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, फिर यहाँ पे हमें मिलता है, और इलेक्ट्रॉन आपका रिवर्स बैक यहाँ पे इस तरह आ जाते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फील होगा उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। लाइक इस इलेक्ट्रॉन को जो इनसाइड बैटरी, इस इलेक्ट्रॉन को जो रेजिस्टेंस फील होगा उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इस बैटरी को अगर मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रा करना है तो मैं इसको इस तरह ड्रा करूँगा कि दिस इज़ माई EMF, ओके, और ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टर हो गया, तो दिस इज़ माई बैटरी, ओके। लाइक बैटरी के आउटसाइड पे मैंने ये पॉजिटिव ड्रा किया है, सो इट मीन्स कि दिस इज़ माई पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ माई नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे आपका ये रेजिस्टर कनेक्ट है, ठीक। तो इस इंटरनल रेजिस्टर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ माई EMF विच इज़ द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, सही है। और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर। तो EMF क्या करता है यहाँ पे, EMF is the actual energy produced. EMF is the conversion from chemical energy to electrical energy. Okay, तो आपका यहाँ पे electrical energy आ गया। EMF means के chemical energy into electrical energy, आपका energy electrical energy में convert हो गया। अब voltage यहाँ पे आपका potential difference create होगा, okay। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका electrical energy जो है वो convert हो रहा है heat energy में। लेट से आपने यहाँ पे हाई रेजिस्टर वायर यूज़ किया, जो लाइक लेट से आपने यहाँ पे हीटर कनेक्ट कर लिया, ओके। सो लेट से दिस इज योर हीटर। हीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टर वायर्स होते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। सो वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस में आपका एनर्जी कन्वर्ट होता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टूवर्ड द हीट एनर्जी, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी आपका कन्वर्जन होता है, सही है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड EMF में आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, पार्ट बी, ए बैटरी ऑफ EMF 6 volt and a negligible internal resistance is connected to a network of resistor and a voltmeter as shown in figure this. So resistor Y has a resistance इतना, okay, and Z has a resistance of itna, okay. The resistance Rx of the variable resistor X is adjusted until the voltmeter read 4.8 volt. Calculate the current in the resistor. अच्छा, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो कितना है इसके इस रेजिस्टर के अक्रॉस, वो आपका बन रहा है 4.8। ओके ओके सर, V is equal to IR से निकाला ना हमने? नहीं, उन्होंने आपको गिवन है दिस। ओके सर, समझ गया, ठीक हो गया, ये वोल्टेज गिवन है। एक्चुअली यहाँ पे आपका नॉब है, उसको आप वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो इसका रेजिस्टर, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टर, ओके। तो इसका रेजिस्टर कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो रहा है, सही है। ओके सर। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टर की वैल्यू मेरे पास अननोन है, such that the voltmeter will give you the reading of 4.8 volt. तो इसका यही मतलब है, the resistance Rx of the variable X is adjusted until the voltmeter read 4.8. So then you will need to calculate the current in resistor in this resistor. तो वो तो आपका करंट यहाँ पे इस तरह आ रहा है करंट, और यहाँ पे जो करंट होगा वो आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, ओके। तो करंट आपका कितना होगा, करंट आप यहाँ पे फाइंड कर लो, 4.8 डिवाइड बाय 32 कर लो, सो यू विल गेट द करंट। यस बिल्कुल, ओके। तो वो तो आपका I is equal to V by R से आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, द टोटल पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो टोटल पावर सर ये I² R से भी आ सकता है टोटल पावर? यस, लेकिन हमने R को फाइंड करना है। R आपका ये 32 ओम है, R तो हमें पता ही नहीं है इसका, ये 24 ओम है। सर और कौन कौन से फार्मूला से बोला पावर के? P is equal to IV था, P is equal to I² R
P is equal to V square by R. तो सर IV से हो नहीं जाएगा, हमें टोटल वोल्टेज तो पता है सर, वो 6 वो है हमारे पास 6 वोल्ट्स। और सर करंट जो है वो सीरीज सर्किट में तो सेम रहेगा, लेकिन ये सीरीज तो नहीं है, एक सीरीज है और साथ उसके दो वो हैं वेरिएबल, तो हमें वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो निकालनी ही पड़ेगी ना फिर एट द एंड, नहीं, करंट आपके पास उसके given बगैर है। तो नहीं होगा। करंट तो हमने फाइंड कर लिया है फर्स्ट पार्ट से। तो सर जो करंट जी में होगा वही पूरा करंट पूरे सर्किट में होगा, क्या ख्याल है? यस एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे तो सर आप, P इज इक्वल टू IV से हो जाएगा आराम से। या आई वी वीक क्या लोगे आप? सर V6 लेंगे। या एग्जैक्टली, सो 6 ले लो, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है वो तो हमने फाइंड कर लिया था पार्ट ए में। तो वो तो सर हमने फाइंड कर लिया ना यस, करंट। ये बाकी मेथड जो है ना, ये इस फार्मूले से अगर आपने फाइंड करने तो वो काफ़ी, इसमें रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोगों ने टाइम को भी देखना है। ओके सर वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो तो हमें भी पता ही नहीं है, यस। करंट पता चलेगा तो रेजिस्टेंस सारी पता चलेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपका अननोन रजिस्टर भी आपको पता नहीं है, सो इसी वजह से वो बाकी फार्मूलाज को अप्लाई करना। यस सर, यही कह रहा था मैं। अच्छा, next part. The number of conduction electron that move through the battery in a time interval of 25 seconds. ये तो easy है. Actually, you need to find the number of conduction electron. Okay, तो current आपका आ गया था। तो इसका फॉर्मूला क्या था? Actually, यहाँ पे आपने current का वो फार्मूला अप्लाई करना है। current का फार्मूला ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि current I is equal to N N क्यू by T। N Q by T, बिल्कुल सर। अब्दुलवास से कभी आ तो सर रहा है, कभी Q तो जा हमें रहा है। Q भी नहीं पता सर, हमें तो कुछ भी नहीं पता, करंट ही पता है, बस टाइम पता है, टाइम भी पता है, N निकालना है। तो सर चार्ज तो हमें नहीं पता, Q तो नहीं पता। नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19। वही ओके ओके ओके, Q की वैल्यू कांस्टेंट है। या दैट इज कांस्टेंट। इसी वजह से तो एन, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो काफ़ी मुश्किल है, वो यही फार्मूला यूज़ करते हैं क्यू बाई टी। तो ये नहीं करना आपने, एन क्यू बाई टी। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके दो सर, हैं, समझ गया। 3 है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंसेप्ट हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक हीलियम में वो कहते हैं कि हीलियम पे कितना वो होगा, तो वो वहाँ पे अगर आपने वो करना है तो वहाँ पे प्रोटॉन्स 2 हैं, तो इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, तो वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, लाइक माई एन वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स वो वहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है एक्सेलरेशन के लिए, ए इज इक्वल टू ई बाई एफ। क्यों था कि इस तरह था, कुछ कोई फार्मूला था। यस सर, गॉट इट। एफ बाई क्यों था, तो एफ इज इक्वल टू एम है, तो आपका ई इज इक्वल टू एम ए बाई क्यू, तो ई क्यू बाई एम था वहाँ पे, ई क्यू बाई एम फार्मूला था। तो यहाँ पे अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ओके, अल्फा पार्टिकल का, तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज आपने वो चार्ज को 2 टाइम्स 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19 करना है, और मास कितना होगा, तो 4 टाइम्स वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 टाइम 10 पावर माइनस 31 करना है। लाइक टोटल मास आपने हीलियम का लेना है अगर आप, इफ़ यू वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये कंसेप्ट वहाँ पे था, वहाँ से आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट question is the total resistance of X and Y connected in parallel. So the total resistance of X and Y connected in parallel. So actually हमारे पास वहाँ पे थोड़ा सा था उसका, यहाँ पे हमारे पास resistance X हमें given नहीं है, सो रेजिस्टेंस एक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एक्स और वाई को फाइंड कर सकते हैं, लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह फाइंड करोगे, व्हाट डू यू थिंक? दिस वोल्टेज इज 4.8। सर हमने क्या फाइंड करने लगे थे बोला? फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। सर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल लिए ना, वो वाला पार्ट तो हो गया। यस, वो तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट था कि द टोटल रेजिस्टेंस। सर ये भी आसान है, मैं बताता हूँ आपको। सर देखिए मेरी बात सुनिए, जो वोल्टेज होता है ना सर,
वो सीरीज सर्किट के अंदर कर जाता है डिवाइड। तो yes सर यहाँ 4.8 है, तो जो इन दोनों के इर्द गिर्द वोल्टेज है वो हमारे पास बनेगा 1.2। अब वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल सर्किट्स में तो रहता है इक्वल। तो सर जब पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज इक्वल रहेगा, लेकिन जो करंट होता है ना सर पैरेलल सर्किट्स में, वो जो होता है वो डिवाइड कर रहा होता है जो करंट होता है। तो yes सर जब वोल्टेज इतना रहेगा तो हम जो वाई के इर्द गिर्द जो रजिस्टर है ना सर, उसका हम सबसे पहले निकाल लेंगे करंट। जब हम उसका करंट निकाल लेंगे okay तो सर हमने टोटल करंट भी निकाल लिया है। तो हम उस टोटल करंट में से वाई रजिस्टर के करंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सर एक्स रजिस्टर का करंट आ जाएगा। जब सर हमारे पास उसका करंट आ जाएगा तो वोल्टेज तो हमें पता है उसके अंदर 1.2 ही रहेगा। तो सर V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले में लगा लेंगे। yes exactly अब्दुल वासे आपको समझ आ गया कि नहीं? वैसे सर मैंने चैप्टर तो अभी तक बुक से नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे समझ आ गई मुझे लगता है। जी सर समझ आ गया। या ओके गुड। अच्छा ये हो गया द रेजिस्टेंस आर एक्स क्या था? अच्छा ये तो हमने फाइंड कर लिए हैं पार्ट 4 में। ओके वही अननोन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर हमने तो पहले निकाल लिया था, ये बाद में पूछता है। ये इन्होंने बाद में द रेजिस्टेंस आर एक्स इज नाउ डिक्रीज स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी टू द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अच्छा तो वही डायग्राम को देख लो। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि मैंने इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना है। ओके जो रेजिस्टेंस मेरे पास आए हैं आर एक्स, इसको मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी यहाँ पे क्या है 4.8 वोल्ट है। आप इस तरह कर लो कि इस आर एक्स रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर लो तो क्या हो जाएगा? अब करंट के उस सर दोबारा से एक दफा जरा सवाल रिपीट करिएगा, क्योंकि मेरे पास ना स्क्रीन अभी चेंज नहीं हुई। अच्छा स्क्रीन आपको नज़र आ रही है मेरे? एक मिनट आप लोग, सर ये मेरा एरर होता है बेसिकली। मेरे ये सर अब आ रही, मेरे फोन का एरर होता है। अच्छा सर आप पहला पेज दिखा रहे हैं ना? या वो व्हाट्सएप का है? हाँ जी 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 ठीक हो गया। यस सर बताइए क्वेश्चन क्या है? या क्वेश्चन ये है कि द रेजिस्टेंस आर एक्स इज नाउ डिक्रीज। ओके इफ यू डिक्रीज दिस आर एक्स वैल्यू resistance Rx, okay this is the Rx. So what will be the effect of on this voltmeter? Like इस voltmeter पे रीडिंग सर ये भी कम हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया, क्या होगा? सर इस पे तो सर सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सर वोल्टेज हम 32 रेजिस्टेंस वाले के इर्द गिर्द रहे हैं, 32 ओम वाले के इर्द गिर्द रहे हैं। हम कौन सा पूरे सर्किट के ले रहे हैं? नहीं तो करंट तो आप जा रहे हैं ना इसमें। करंट जितना करंट है उसके अकॉर्डिंगली आपका 4.8 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस तो आपका फिक्स है, लेकिन करंट तो चेंज नहीं होगा अगर आप इस रेजिस्टर को चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, बिकॉज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज पर रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट होगा। तो ये यस सर करंट तो सर इस तरफ, फिर सर करंट इस तरफ कम हो जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस हम कम करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा करंट होता है ना। नहीं, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना कम करंट होता है। यस सही है। तो इस तरफ करंट बढ़ जाएगा, उस तरफ करंट कम हो जाएगा। यहाँ पे कम हो जाएगा तो सर वोल्टमीटर की रीडिंग भी कम होगी। नहीं, यहाँ पे किस तरह कम होगा? यानी सर ऊपर वाले वोल्टमीटर की, या तो वो आपकी एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया है। तो करंट बढ़ गया, इट मीन्स कि ये ज़्यादा डिमांड कर रहा है करंट का। तो यहाँ पे आपका ये करंट बढ़ जाएगा। ओके ये करंट बढ़ जाएगा क्योंकि इसको तो अपना वो मिलेगा अपना करंट, लेकिन यहाँ पे आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ पे आपका V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, 32 ओम है। दोनों कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। सो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू I हो जाएगा। तो इंक्रीज हो गया करंट, तो वोल्टमीटर का रीडिंग भी आपका इंक्रीज हो गया यहाँ पे। लाइक ज़्यादा ड्रॉप होगा अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिंपल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, the current in a metal wire is Yes, given sir. by this expression is equal to n q v. Explain what is mean by symbol A and symbol N. ये मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं चैप्टर को रिवाइज करें. ए तो आपका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही है. वो इस तरह Yes, sir. ये आपका वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज़ द वेलोसिटी एंड दिस इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. वो इस तरह था ना, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप ये एरिया इंक्रीज़ कर लो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो रैंडमली फ्लो करेंगे. तो ये जैसे ही आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर लेते हो तो ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर लेते हैं. सो उस टाइम जो वेलोसिटी होगा उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं. वो वेलोसिटी आपने यहाँ पे पुट करना है. सही है. यहाँ वी पे E is Yes, the sir. charge on electron which is 1.6 10 to the power minus 19. N is the number of electron. यहाँ पे कितने, इस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंड उस पर डिपेंड करते हैं. A is the area. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इतना ज़्यादा करंट आपका होगा. A is the area. ये एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये जितना ज़्यादा एरिया होगा तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतना ज़्यादा करंट होगा. सो दिस इज़ द फार्मूला. I is equal to N Q V A. V D A अक्सर हम लिखते हैं इसको. I is equal to N Q VDA. VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अक्सर वो पूछते हैं Yes, sir. कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड कर लो तो आप. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने द डायमीटर ऑफ द वायर एक्स वाई वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस along the wire as shown in figure. There is a current I in the wire at end x of the wire. The diameter is d and the average drift speed of the free electron is Vx. At end y of the wire the diameter is d divided by 2. On figure or sketch a graph to show the variation of average drift speed with position along the wire between x and y. तो ये तो बढ़ नहीं जाएगी डायमीटर जब कम करेंगे तो, या कम हो जाएगी? नहीं, करंट जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करते हैं. सही है. और तो उससे करंट तो कम हो जाएगा. एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है तो करंट तो आपका कम हो जाएगा. अच्छा, हमने स्केच करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और पोजीशन अलोंग द वायर. ओके, पोजीशन अलोंग द वायर एक्स और वाई होगा. सही है. तो यहाँ पे हमने करंट यहाँ पे फाइंड करना है और फिर यहाँ पे हमने फाइंड करना है करंट को. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I is equal to N Q V D A. I तो एरिया आपका यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे आपका जो करंट है वो दोनों केसेस में सेम जा रहे हैं. यहाँ पे भी करंट एक्स है, करंट आई है, यहाँ पे भी करंट आई है. सही है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा और दूसरी साइड पे आपका n इंटू 1.6 टाइम 10 की पावर माइनस 19. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vx और ये क्या हो जाएगा पाई.
सो ये इसको इक्वलाइज कर लो, सो दिस विल बी सो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स vx1। यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो vx है, तो दिस विल बी vx। तो ये आपका कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। यहाँ पे आपका जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। सही है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने लीनियरली, क्योंकि आपका ये फार्मूला जो है अक्सर आपका फार्मूला जिसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा, सो दैट इज़ वहाँ पे आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट अगर आपने लाइन ड्रा करना है बिटवीन पावर एंड करंट, सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। एंड इफ रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू एंड दैट इज़ कांस्टेंट, तो फिर आपका यहाँ पे वो कर्व सा बनेगा। लेकिन फार्मूला यहाँ पे लीनियर है तो इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे आपका एक तो ये आ जाएगा, सॉरी नॉट दिस वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वी एक्स एट पॉइंट एक्स, तो ये आपका वी एक्स हो जाएगा। ओके, और दूसरा y पे आपका 4x बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो बस स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लो इस तरह का, ये लाइन हो जाएगा। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द कॉलम इजी है। ओके, पार्ट बी, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन द फॉलोइंग लिस्ट, अंडरलाइन द पॉसिबल चार्ज फॉर ए चार्ज कैरियर। क्या होगा पॉसिबल चार्ज फॉर ए चार्ज कैरियर? कौन कौन से होंगे, व्हाट डू यू थिंक? एक तो आपको लोग पता है, दैट इज 1.6 10⁻⁻⁹ 19। कोई और होगा कि नहीं? सर आप बताएं। अच्छा, यहाँ पे दिस इज़ 1.6। ओके, तो आप 1.6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, क्योंकि आपका वो होल नंबर लाइक डेसिमल में नहीं होना चाहिए, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1.6 के साथ अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर लो, सो 1.6 टाइम्स 5 दैट्स विल बी इक्वल टू 8। तो 8 टाइम्स 10⁻⁻⁹, एक तो ये हो जाएगा। ओके, दिस इज द पॉसिबल चार्जेस फॉर ए चार्ज कैरियर, लाइक दिस इज द चार्ज ऑफ 5e 5 क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। तो 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे क्या आता है? डेसिमल में नहीं आना चाहिए, 6.4 आ रहा है, नो 3 से कर लेते हैं। 4.8 आ रहे हैं, नो 2 से कर लेते हैं। 3.2 आ रहे हैं, तो 4 नहीं आ रहा। ओके, 1.6 वो वाला 1.6 टाइम 10⁻⁻20 है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। होल नंबर में आना चाहिए। एक्चुअली आपका जो करंट है दैट इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स क्यू डिवाइड बाई टी। इस तरह तो नहीं हो सकता कि हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होल नंबर में होंगे। द डायमीटर ऑफ द वायर एस टी वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस, ये भी उसी तरह है। सही है, इसको आप लोग पे ट्राई कर लो। करंट सेम ही है, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एस है, यहाँ पे आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने, वही सेम रिलेशन आप लोगों ने यूज़ करने और उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे इस ग्राफ को पे ड्रा करने, वही उसी तरह है।